Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. 20 मिलियन मैं क्या करूंगा, संभाल पाऊंगा? Binod is the baby of Gautami and Abhyudaya. That is the baby of Slay Point. I think a lot of लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार इसके तो 20 मिलियन सब्स है, इसको क्या जरूरत है डिप्रेशन में जाने की. बट लोगों को ये समझ नहीं आता है कि हर इंसान का एक लेवल होता है. अगर मैं 20 मिलियन के लेवल पे हूँ तो मेरा डिप्रेशन भी 20 मिलियन वाला है. बचपन से ही था सपना बॉलीवुड में जाने का, बचपन से लगा आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर. मेरे को उधर मौका नहीं मिला, इसलिए आए came on YouTube. I haven't met someone as crazy as Ranveer Singh. He kissed me over it. Yeah, it felt like I met my Sindhi brother after a long time, जो मेरे को बचपन के बाद अभी मिला है. The problem I think is not nepotism. Nepotism हर जगह है. Problem is groupism and favoritism. Outsiders को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि यार he's from a team, he's from a unprivileged place. His talent should be seen. काई पोचे आई थी, या ब्योमकेश बख्शी आई थी, 10-15 लोग थे थिएटर में. एंड अब जब ही इज नो मोर विद अस, आई थिंक इट्स रियली अनफेयर टू हिम कि जब वो अलाइव थे तब इतना उनको अटेंशन क्यों नहीं मिला. तो rather than now going and hating, I would request public to go and love these people. Bring these talented people up. विद्युत जामवाल हो गए, उनकी पिक्चर आई है खुदा हाफिज, उसमें शिवालिका ओबराय है. She's an outsider. Now, would Ashish have plans of like doing like a Bollywood film? Joining me for a conversation today is a man who needs no introduction, and I'm talking about like no introduction literally because he's everywhere on the internet. Wherever you see, he's going to be there. Be it Vines, Instagram, YouTube, anything. And I'm of course talking about Ashish Chanchlani. Hi Ashish, welcome to India Forums. It's always so good talking to you. How are you? थैंक यू सिमरन. फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आपने ये बोल के ना कि मैं हर जगह हूँ, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मेरे को ना ऐसे डर लगता है यार. लोग बोलेंगे कौन है ये, क्या है, क्यों इसको इतना वाव मिल रहा है. थैंक यू सो मच, दैट वाज अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. इट्स ऑलवेज फन टू बी विद यू गाइस. Amazing. And of course I'm going to begin by asking you, जैसे आपने बोला कौन है ये लोग, ये कम ही लोग होंगे actually, शायद ही कोई होगा, because you already have like 20 million people glued to your channel, literally in a form of subscribers. Tell me, how does it feel like? 20 million लोगों की नजर है कि ये चैनल पे भी आएगा and we are going to be there for him. मैं सबको यही बोलता हूँ and I'm not gonna change my answer कि लगता ही नहीं है कि मेरे 20 मिलियन है, क्योंकि दिल से तो मैं वही कॉलेज वाला लड़का हूँ. और इतना ज्यादा लोग देखते हैं, 2 करोड़. मतलब वो पिक्चर थी एक केक, उसमें बोलता है कि आप तुम्हारे घर पे कुछ तो बहुत सारे पैसे, तो बोलते हैं क्या, मेरे तो सपने भी 3-4 हजार के आते, तो मुझे तो सपने भी 1-2 लाख सब्सक्राइबर के आए थे. 2 करोड़ आप समझती हो मतलब कितना ज्यादा हो गया. मेरे को कभी कभी डर लगता है कि अब क्या 20 मिलियन मैं क्या करूंगा, संभाल पाऊंगा मैं अपनी ये फेम, अपना ये जो लोगों ने मेरे को उठा के इतना ऊंचा ऊंचा पहुंचा दिया, क्या मैं इसको संभाल पाऊंगा. मेरे को बस यही रहता है. And I was going to ask you that only, जो next question था मेरे, ये सब काफी overwhelming होता है, but at the same time comes with a lot of responsibility, because like एक चीज and then like it can just blow up out of nowhere. And आजकल you must also be seeing कि कुछ भी बोल दो तो social media पे it can become anything and everything in just a fraction of seconds. So tell me how, like what's the mental process like when you have these many eyeballs on you? So what I started doing is that abhi agar if there are slangs in the video, I always make sure there's a disclaimer that states कि ये video में slangs है. Please, this is not for children. I would request everyone to not view this. And मैं क्या करता हूँ, Facebook पे clean version डालता हूँ, because Facebook पे बहुत families होती है and they share a lot of stuff. तो Facebook पे you will notice most of the time it's clean. 10% of the time there is like I put a very heavy filter कि guys देखो ये इधर नहीं चलेगा. अगर आपको बच्चे हैं आपके तो देखो. तो एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ. एंड मेरा हमेशा से यही, एक्चुअली हर क्रिएटर जिसको मैं जानता हूँ पर्सनली, हम सबका हमेशा से यही रहा है कि हम पब्लिक को ये बताएं कि हम गालियाँ मजाक में देते हैं. वी डोंट मीन दैट गालियाँ. आई विश, मेरे को कभी कभी लगता है ये गालियों का वो मतलब होता ही नहीं जो एक्चुअली लोग उसको लिया जाता है. तो हम लोग जो डे टू डे लाइफ
जो सब गाली देते हैं, लोग गुस्से में गाली देते हैं, मजाक में गाली देते हैं, हम उस वे में यूज करते हैं। एंड वो जो डिफरेंशिएशन है ना, वो हम लोग वी मेक श्योर कि वी डू नॉट मीन इट, वी एब्सोल्युटली नॉट मीन इट। तो यार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम रखते हैं। एंड अभी आप नोटिस करेंगे हमने पहले से कम कर दिया, इतना नहीं करते हम लोग जितना। True. Really, make it a point. I've seen in your videos, like right in the start, you mentioned that this is age restricted content and all of that. Now I want to ask you that like you must be seeing a bunch of social media trends during the lockdown, but because you are a part of the YouTube like culture, I'm sure you must have come across these like Binod wale trends, and I really want to know that what is it that choti si cheez itni zyada like has become so famous, and how does this work actually? So I was saying ki Binod is the baby of Gautami and Abhyudaya and Slay Point. That is the baby of Slay Point. And un YouTubers ne मजाक में they are very talented, both of them, बहुत कुछ करते हैं। तो मैंने देखा, मेरे को पहले आइडिया नहीं था, विनोद फैलना चालू हो गया। मैंने वीडियो अपलोड की थी, विनोद कमेंट। तो वो एक मतलब उन्होंने मजाक किया, पब्लिक ने देखा, अच्छा हम साला यही करेंगे, लोगों को मजा आने लगता है। एक बार आप लोगों को कुछ एक चीज मिल जाती है ना, क्योंकि देखिए विनोद बड़ा ही अनकॉमन नेम है। विनोद यूजुअली बंगाली पीपल वी की जगह बी यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल से ओरिजिनेट उधर से ही हुआ है, विनोद का विरोध हुआ। तो काफी मतलब अनकॉमन नेम है, तो लोगों को वो स्टाइल पसंद आ गया कि वो बंदे ने अपना ही नाम कमेंट किया था। तो लोग वही कमेंट करने लगे, विनोद। एंड इतनी छोटी सी चीज ऐसे जंगल की आग की तरह पूरे इंटरनेट पे फैल गई। तो आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट। मेरे को बहुत मजा आता है, आई रियली एंजॉय सच रैंडम स्टफ। कहाँ से कहाँ आया पता नहीं। एक बार सोनम गुप्ता बेवफाई आया था, वो फैलना चालू हो गया, किसी ने नोट पे लिखा था सोनम गुप्ता बेवफाई। तो आपको पता ही है कि कुछ लोगों को मजा आ जाता है, ट्रेंड तो पकड़ लेते हैं, एंड इट्स फन। Right, but talking about things getting viral, you are of course someone who gets viral. Like कोई भी video डालना, it has to go viral. The Rakhi video, the lockdown video that you did like very initially, and of course Rakhi video is something जो is also sort of like a parampara or trend for your channel, because you usually do these videos पहले also. So because I know that you did the Rakhi video after quite a break, so tell me like बीच में ये जो lockdown था, I saw your stories also, you were like I'm not feeling the best like in terms of creating content or writing content, and like the lockdown or the whole situation has just gotten to my head. So tell me like how is the like mind process now, and also that time how was it? Lockdown के time I was going through a very dark and depressing time, and I think it was a result of a lot of overthinking, anxiety, and I'm a human at the end of the day. इंसान हूँ तो डर तो लगेगा ही। तो वो डर की वजह से मैं थोड़ा ये हो गया था कि अब आगे क्या। एंड काफी कुछ नोन लोग और मेरे स्टाफ के कुछ लोगों को जब करीब से मैंने देखा कि उनकी जिंदगी कितना तकलीफों से जा रही है बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप मेरे पास सब है, मेरे पास घर है, एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट। मैं काफी अफेक्ट हो जाता हूँ। मैं जब किसी the right word is financially less कोई अगर होता है, I go out of my way to support them who I know, but मेरा दिल बहुत दुख जाता है कि एक पैंडेमिक आया एंड कितने लोगों की जिंदगी खराब हो गई। सो ओवर थिंकिंग के चक्कर में मैं भी खुद डिप्रेस हो गया था, एंड ऑनलाइन भी माहौल इतना टॉक्सिक हो गया था। इट वाज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार इसके तो 20 मिलियन सब्स है, इसको क्या जरूरत है डिप्रेशन में जाने की। बट लोगों को ये समझ नहीं आता है कि हर इंसान का एक लेवल होता है। अगर मैं 20 मिलियन के लेवल पे हूँ तो मेरा डिप्रेशन भी 20 मिलियन वाला है। आप समझ रहे हो कि उससे रिलेटेड नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय सक्सेस, आई एम जस्ट सेइंग कि मैं जिस लेवल पे हूँ अपनी लाइफ में, उस लेवल का मुझे उस लेवल के स्ट्राटा का डिप्रेशन है। जब मैं कॉलेज में था तब एक अलग था, अब आप है या कोई भी है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मेंटल प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी हो सकती है। एक स्टूडेंट हो, एक ऑफिस जाने वाला बंदा हो, चाहे वो मेरे वॉचमैन हो। But I think the problems can be different or the triggers can be different, but I think more or less impact is the same on anybody. Impact is the same. तो मेरे साथ भी वही हुआ। So मैंने क्या किया,
अभी लोग इसको भले ही कुछ बेवकूफ लोग इसको अटेंशन सीकिंग या सिंपैथी गेनिंग बोले, मैं बोला कि मैं अपने फॉलोअर्स को झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। मेरे से नहीं हो रहा था, मेरे से छुपाना, इग्नोर करना, तो मैं फॉलोअर्स को आके बोल दिया कि देखो मेरे साथ ये तकलीफें चल रही है, आई नीड यू ऑल, एंड नॉट जस्ट लाइक आई डोंट नीड योर लाइक्स या ऐसा कुछ, आई जस्ट नीड your positive words, your messages, and they sent me so many messages, I'm telling you, वो सब देख के मेरे को ऐसा लग रहा नहीं यार, लोग प्यार करते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, एंड बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत बहुत, मतलब ऐसे वो खुशी के आंसू आ गए। उनकी वजह से ही मेरे में ताकत आई कि मैं I'll make a video on रक्षाबंधन। ऑल्सो आपने जैसा बोला रक्षाबंधन या कोई भी फेस्टिवल आता है ना, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, अभी गणेश चतुर्थी, आई गेट रियली एक्साइटेड, आई लव फेस्टिवल्स। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे फेस्टिवल्स मेरे को इतने पसंद है ना, आई थिंक इट्स अ मोमेंट। रक्षाबंधन जब पूरी फैमिली साथ में आती है, यू फॉलो योर अमेजिंग ट्रेडिशंस एंड कल्चर, इट्स लाइक अ गेट टुगेदर, and it's so beautiful with our religion, with our traditions, that I have a very connected feel to all of this. तो मुझे ऐसा मन करता है कि मैं एक वीडियो बनाऊं हर फेस्टिवल पे, कि ये फेस्टिवल में फैमिली के विदिन क्या होता है, ये फेस्टिवल में फ्रेंड्स के विदिन क्या होता है, कि दिवाली पे लड़के लोग क्या मस्ती करते हैं, रक्षाबंधन में भाई बहन के बीच में क्या होता है। बड़ा मन था मैं कि गणेश चतुर्थी पे भी कुछ बनाऊं मैं, बहुत फन विद इन द फैमिली, लेकिन मैं नहीं बना सकता कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से, बट मे बी वन डे। सो आई थिंक फेस्टिवल पे वीडियोस बनाना मुझे बहुत मजा आता है। आई थिंक इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी ऑन माय यूट्यूब चैनल, दैट इज व्हाट आई फील, मजा आता है, एंड ऑल्सो द फैमिलीज एंजॉय इट। आपके मॉम देखेगी, बहुत मजा आता है, क्योंकि एक गेट टुगेदर होता है सब फैमिलीज का, तो आई थिंक इट्स रियली गुड। Amazing. Another thing that I really was wanting to ask you, since the time I saw you hosting, like Suryavanshi ka trailer launch, I really wanted to ask that experience, and it was like, I was out of nowhere, I see Ashish Anshlani on the stage hosting, which was so rare. Like, I've never seen a YouTuber actually, like, go ahead and host a trailer launch. So tell me, like, how did you get on board, and then how did it all like come together? So one of my friends, she contacted me and she told me that Rohit sir wants you to promote the film. And I'm telling you, I'm a big Rohit Shetty fan. Like, it's one of my, I have a list of directors and top 5 में रोहित सर का नाम है, मतलब because I'm a, आप देखोगे मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, and Golmaal has been that one movie that changed my life because it was one of the funniest. So I have extreme love for Rohit sir, क्योंकि इनकी मूवीज में मेरे को कॉमेडी इतनी पसंद है, मेरे को उनकी मूवीज का एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है। तो आई वाज लाइक डन, बोलने की जरूरत भी नहीं है। रोहित सर हैज बीन लाइक अ वेरी बिग इंस्पिरेशन टू मी। तो मैं रोहित सर से मिला, एंड उन्होंने बोला होस्टिंग कर, आजा ट्रेलर होस्ट कर, एंड ये डिसाइड किया था रोहित सर एंड अक्षय सर ने। अक्षय सर आल्सो वांटेड मी टू होस्ट, एंड देन आई मेट अक्षय सर वन डे, दिस इज द थर्ड टाइम आई मेट हिम, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट होस्टिंग, एंड इट वाज सच अ, आपको एक बात बताऊं, मैं कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ था, मैंने एक दिन बोला था कि वन डे आई वुड मीट अक्षय कुमार। अक्षय सर मीन्स अ लॉट टू मी, ही मीन्स अ लॉट टू मी। तो उस दिन मैं, मतलब बिफोर द सूर्यवंशी ट्रेलर लॉन्च, मैं अक्षय सर के साथ बैठा था, आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड ही वाज टॉकिंग टू मी, ही वाज टॉकिंग अबाउट माय कंटेंट। तो मुझे ना वो इतना, वो मोमेंट होता है ना आपकी लाइफ में, एक मेमोरी में छप जाता है। सो आई थिंक हिम नोइंग मी एंड हिम वांटिंग मी टू होस्ट, and that was really sweet of him. Then on the premiere I met Ajay Devgan sir, I met Ranveer Singh. My god, I haven't met someone as crazy as Ranveer Singh. He kissed me over here. He is, we saw the video. It felt like, yeah, it felt like I met my Sindhi brother after a long time, जो मेरे को बचपन के बाद अभी मिला है। That is the warmth he gave me. And I met Ajay Devgan sir. Ajay Devgan sir, he's so intellectual and he's so smart and he's like such a gentleman guy. Everybody had their own flavor. Akshay sir is very witty. Ajay Devgan sir is like very shant, एकदम बोलते हैं ना gentleman type. But the Ranveer Singh is like very crazy guy. तो वो experience ही बहुत अच्छा था. I loved hosting it, and I'm now in contact with these people, and I think it's kind of a big journey if you see. From where I started, where I always wanted to be, Bollywood has been my very big dream, and there is no कोई गलत बात नहीं है। मेरा बचपन से हमेशा से एक्टिंग का सपना था,
अब YouTube पे अपना Right. कर रहा हूँ, तो मतलब it has a very special place in my heart. So अच्छा लगता है, बहुत बहुत बढ़िया था. But you Very good what's moment even it was. more special is not like you going up to them, but they coming up to you and matlab Bollywood going and you know like trying to have a space in the YouTube space and you Yeah, are there yeah. ruling Yeah. that already. Like, cause few years back you would have thought कि ठीक है मैं YouTube channel थोड़ा करूँगा and then probably I'll go and try for Bollywood. But यहाँ पे उल्टा हो रहा है cause like they are actually approaching you, which is so nice Yeah. because I'm sure उसने नहीं सोचा होगा कि this could be possible. मेरा ना सिमरन बचपन से ही था सपना बॉलीवुड में जाने का. बचपन से लगा आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर. मेरे को उधर मौका नहीं मिला, इसलिए आए केम ऑन YouTube. एंड नाउ इट्स उल्टा हो गया. लाइक I know a lot of people because of my content, without any connection, without anything else. Right. getting attention from the place you always wanted to be, it's a very big achievement. बहुत लोगों को शायद कुछ उल्टा लगता होगा, but I think it's a very beautiful journey. कि मुझे मेरे फैंस ने ये मौका दिया, मतलब मेरे सपने पूरे किए. भले मुझे रास्ता अलग लेना पड़ा, लेकिन मेरे काफी ज्यादा सपने पूरे हो गए. ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं सीधा बॉलीवुड में गया होता तो शायद इतने भी सपने पूरे नहीं होते जितना मेरे यूट्यूब के थ्रू हुए. सो यूट्यूब इज लाइक नंबर 1 फॉर मी. Right. And you are number 1 on the platform, like of course, because अगर इंडिया की बात करें तो if there are a few names जो सबसे पहले लोगों के जुबान पे आएंगे तो you are of course one of them, and it's amazing. Another thing that I really want to ask you is you know, just the way you spoke कि कभी मौका नहीं मिला बॉलीवुड का, and I'm sure you must have seen all the debate that's going around with the inside outsider and the whole nepotism thing. Do you have some words or like you know to share on that? What is your opinion of it? My only opinion has been on this कि when I was like trying to audition for it, yes, there definitely outsiders are a little neglected, and I have seen that, but I saw cinema, it changed over time. We got a lot of newcomers. I'm seeing also now that we are getting newcomers. We have outsiders who are working hard. What the problem I think is not nepotism. Nepotism har jagah hai. Problem is groupism and favoritism. That is a very big problem. And I think that should be eradicated. Outsiders को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि यार he's from a team, he's from a unprivileged place. His talent should be seen. What he is, how good he is at his craft. And if this happens, I think if this is fixed, it won't matter if you are a nepotism product or if you are not a nepotism product. Ultimately, you are given an equal chance. You are given a lot of love. And honestly, मैं आपको बात बताऊं, audience के हाथ में, सब audience के हाथ में. True. There are a lot of talented people that we have from the nepotism. We have a lot of talented people from outsiders. We have a very good balance in the industry. Right. आपको nepotism की वजह से आपको पहली पिक्चर मिल सकती है, आपको definitely एक push मिल सकता है, वो तो है. There is no denying that. But after that you have to survive on public's love. So मैं audience से यही कहूँगा कि आपके हाथ में है, आपको जो अच्छा लगता है ना आप देखो, प्लीज देखो, प्यार करो. एंड अगर ब्योमकेश बख्शी जैसी पिक्चर आती है तो प्लीज सिनेमास में जाके देखो, प्लीज. क्योंकि मेरे को याद है जब मतलब काई पोचे आई थी या ब्योमकेश बख्शी आई थी, 10-15 लोग थे थिएटर में. एंड अब जब ही इज नो मोर विद अस, आई थिंक इट्स रियली अनफेयर टू हिम कि जब वो अलाइव थे तब इतना उनको अटेंशन क्यों नहीं मिला. तो ये चीज आप अभी पब्लिक को चेंज करनी चाहिए. Let's not get used to point. You know, like जब whenever we see a movie like that, we are like चल कोई बात नहीं, like TV पे आएगी तब देख लेंगे, अभी क्यों देखना है. That and now of course the raging की why this happened, and of course like he was depressed and all of that. Those. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुणाल खेमू है, उनकी पिक्चर आई अभी लूट केस. Such a fantastic comedy movie. लोग अभी क्यों नहीं देख रहे उस पिक्चर का, इतना क्यों नहीं नाम हो रहा है, क्यों नहीं? इतनी अच्छी कॉमेडी पिक्चर, इतने अच्छे परफॉर्मर है कुणाल खेमू. सिर्फ कुणाल खेमू ही नहीं, विजय राज हो गए, रणवीर शोरे हो गए, जो एक्ट्रेस उनका नाम दुग्गल जो है एक्ट्रेस, शी इज सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस. सॉरी
मैं इनका नाम भूल गया, रसिका, मैं रश्मि बोल रहा हूँ, रसिका जी, कितने ये सब आउटसाइडर्स है, अभी पब्लिक उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? मैं बस ये कहता हूँ कि आपके हाथ में है पब्लिक। आप मैं आई एम अ टाइप ऑफ गाय जो कभी हेटरेट पे ध्यान नहीं देगा। मैं मेरा हमेशा अप्रोच पॉजिटिव की तरफ गया है। तो rather than now going and hating, I would request public to go and love these people, bring these talented people up. विद्युत जामवाल हो गए, उनकी पिक्चर आई है खुदा हाफिज, उसमें शिवालिका ओबरॉय है, शी इज एन आउटसाइडर। कितने सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस है, they now need your attention and give them the attention. That is what my message is to people. Yeah. Now, would Ashish have plans of like doing like a Bollywood film? Because I'm sure अब तो भी आते होंगे कि like एक मूवी कर लो and all of that. तो would you now consider, or you are like कि नहीं अभी तो like I'm not going to do it, or for now I don't want to do it? ये तो मैं ओवर ही नकली बनूंगा अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मेरे को नहीं करना है, अभी मैं यूट्यूब पे ठीक हूँ। अपने पैशन से आदमी नहीं भाग सकता। अब है तो है मेरा सपना बॉलीवुड मूवीज में काम करने का, सब पब्लिक के हाथ में है एंड मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स ऐसे हाथ में प्लेट में नहीं मिलेगा। I want to make sure when I come there, when I do a movie, I'm completely prepared to do it. I don't want to disappoint my fans. I don't want to, and I want new audience to accept me as well. So मेहनत करनी है मुझे पका पकाया हाथ में नहीं चाहिए एंड उस मेहनत मुझे वहां तक पहुंचना है। तो मैं पूरा तैयारी में हूँ। Let's see क्या होता है। I'm just waiting for the right offer. I'll just wait for the right offer. Fingers crossed. So yeah. So much, Ashish, for doing this. Lastly, before we wind up, I want you to give a very quick message to all the 20 million people and also people who've not subscribed as yet, और सिर्फ ऐसे isolation में वीडियो देखते सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. What message give? Because बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं. सबसे पहले तो मेरे सारे फैंस को, my supporters, my followers, I want to thank you all very much. You guys saved me this lockdown. एंड तुम लोग सब मेरा सहारा हो यार। मेरी फैमिली के बाद अगर मेरी दूसरी फैमिली तुम लोग हो, तुम लोग ने मेरे को बहुत सहारा दिया है। सो आई वांट टू थैंक यू। आप लोग के बिना मैं कुछ नहीं हूँ एंड इतना प्यार देते हो ना आप लोग। कभी कभी ऐसे इतना ओवर इमोशनल हो जाता हूँ, वो इमोशन के चक्कर में मैं 10-12 के थैंक यू बोलता हूँ, तो वो चलता रहेगा। तो उसको बेयर करते रहो, ठीक है? क्योंकि आई मीन इट फ्रॉम माई हार्ट। भले कितना भी फेक लगे, आई मीन इट फ्रॉम माई हार्ट। आई लव यू गाइस वेरी मच। तो मेरी जगह आके देखो, तुमको भी प्यार फटेगा अपने ऊपर, ठीक है? और the ones who have not subscribed but watch my videos, I love you as well. आप लोग व्यू दे रहे हो, बड़े बच्चे को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? मतलब अच्छा चैनल है। मतलब अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो एक बटन है सब्सक्राइब, आप उसको दबा दोगे ना, आपको वीडियो आते रहेंगे। समझ रहे हो? आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो क्यों फिर आपको सर्च करना पड़े? क्यों इतनी मेहनत? यूट्यूब वालों ने ये मेहनत बचाने के लिए ही तो सब्सक्राइब निकाला है भाई लोग और दूसरों की बहन लोग। सो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड वीडियो के नोटिफिकेशन पाओ और एंजॉय करो वीडियो। Amazing. Thank you so much, Ashish. All the best for all the lovely work that you keep doing and will do. Thank you so much. Thank you so much. This. Thank you. And stay safe. Thank you. You too. Stay safe, Simran. Take care. Bye. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.